Namaskar viewers, hello and welcome to this special broadcast on Sansad TV. I am Tina Jha and with me is my colleague Manoj Verma. India will have to work on a larger canvas and all laws that will be made and all debates in Parliament must be aimed at encouraging Indian aspirations. If we cannot enlarge the canvas of our thinking, we will not be able to paint a picture of a grand India of our dreams. That's the message Prime Minister Narendra Modi gave to parliamentarians as parliamentary proceedings moved to the new building, now called the Parliament House of India. At the first proceeding in the Lok Sabha, the government introduced the Constitution Amendment Bill to provide 33% reservation to women in Lok Sabha and assemblies of states and union territories. We are all aware the discussion on this issue has happened for a long time under several governments, but it could not fructify into a law. Now, as we strive to make new beginnings for a new future, will we be able to create the level playing field for 50% of our population? Also, what more significant and bold steps will we have to take towards fulfilling the aspirations of 140 crore Indians? We'll talk about this and much more with distinguished guests joining us on this special broadcast. I am pleased to welcome in the studio Mr. Rakesh Sinha, Member of Parliament, Rajya Sabha. He represents the BJP, and in a short while we'll also be joined by Dr. Sonal Mansingh and Mr. Jagdambika Pal, both members of Parliament. Mr. Sinha, to you first. Historic day for India, not just in terms of shifting from the old to the new, beginning a new chapter of our parliamentary journey, but also the fact that it comes with a bang. We have this long pending women's reservation bill, which will mean more inclusive and more participatory democracy in future. Today is the historic day in the history of modern India. There are two reasons. One, that we shifted to a new building that is not merely a new building. That is the beginning of decolonized India. Right. Decolonized in the sense that earlier we had been decolonized in the sense of politics and geography. But Eurocentric ideas dominated as for more than 1700 laws framed by the Britishers were the part of our constitution. The Prime Minister Narendra Modi ji, with his grand vision, since 2016, abolished all the 1700 laws which were the part of the Indian Constitution and framed by the Britishers. So I think that the complete paradigm shift, the shift from Eurocentric to India-centric, that is one reason that we started a new beginning of a Swaraj in ideas. Right. Second important thing is that the Women Reservation Bill, that has been a slogan in Indian politics for a long time. Now it is no longer a slogan. Prime Minister indicated that we are going to pass this bill. This would be a substantive step by the Indian government rather than a symbolism which were part of the Indian discourse. Okay, Dr. Sonal Mansingh is also joining us virtually. Dr. Mansingh, delighted to have you with us on this special broadcast. It's been a historic day, as you know, Mr. Sinha also rightly said, and more so for women, because it makes our democracy more participatory, more inclusive in nature. The government has managed to, shift the focus from women's development in India to women-led development. As a woman parliamentarian, how big a step do you see it in empowering the women of this country? Well, everyone is saying this is historic. It is indeed historic. 76 years down the line, finally, I think women will get the due. 33% itself is a big deal, although I think that women, as more than half of the population, may get more in years to come. First thing is that Modi ji believes in women-led development. And this message came through loud and clear also during G20. Right. For that, I think he prepared the first 5 years, 6 years, different yojanas, different schemes, which were put into practice. Ujjwala, Janadhan, they have become socially even more aware, I'm saying, from what they were. They were always aware that now they will have full opportunity to participate, and delimitation will also bring in many more women than anticipated. So this is indeed historic, and one can't stop praising, because everybody's share is there. Nobody is saying that only XYZ. But the point is
the political will to do it and do it phase-wise, stepwise, logically, so that it meets the right end. And I'm hoping that it will be done unanimously, despite debates. Debates and discussions are part of the parliamentary procedures, but not with undue disrespect or undue arguments, with positivity and looking forward. I think this is a fantastic moment, and I'm so honored to be a part of this at this moment. Today, Ganesh Chaturthi, going into the new building of the parliament, absolutely majestic. And then the Women's Reservation Bill. I don't even want to call it reservation, although it has been named so. But I would say the gift to women of India. Absolutely. You know, since you suggested the name, I would like to take one question to you, Mr. Sinha. The name has been quite impressive. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. What's the thought behind the name? It could have been called Women's Reservation as in the past, but the name seems to have, it seems a lot of thought has been put behind it. In Indian political and social discourse, women have been a subject and object. So women, we used to, in academics and outside academics, women discourse, Dalit discourse. So women have been objective. Now Prime Minister changed this. It's the empowerment of the women. They are no longer objective. They can lead us and they are leading us. Prime Minister categorically said today that you give her opportunity and you will find that enormous power used by women in every field, whether scientific field or in political or culture or social. This is the vision of the Prime Minister, which has created a transformation from subject and object to the leadership of the women, number one. Number two, very important thing that Indian women's representation in legislature is very low. Right. In parliament is nearly 10%. Even in Pakistan, it is 20%. And Pakistan reserved 17% seat in 2002. In US, it is 29%. And so Rwanda, a country where 51%, New Zealand 50%. So the representation is low because in traditional society, although we have one Prime Minister, Indira Gandhi, a woman Prime Minister, and there are several women leaders during the freedom movement, but women representation remained confined to the elite class. Now Prime Minister has expanded this space. And the opportunity which are being given to women is not merely just as a mercy to women, it is their right. And considering the right-based opportunity, the Prime Minister categorically said that both men and women can play the equal role. You cannot deprive 50% population from playing a role in policy making, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जी बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन अगर जैसा सोनल मानसिंह जी ने कहा कि पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, और उसको इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यों से भी करके दिखाया। अगर 14 से लेकर अब तक का हम सफ़र देखें तो चाहे बात नीतियों की हो जिसकी जिक्र राकेश सिन्हा जी कर रहे थे, या बात फैसले लेने की हो, एक बड़ा फैसला अगर हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल आज सदन में पहले दिन पेश किया गया, वो अपने में एक तरह से ऐतिहासिक है। जब बात भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की होती है, क्योंकि जिस लोकतांत्रिक यात्रा की हम बात कर रहे हैं उसमें आधी आबादी की भागीदारी बढ़े, वो भी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने संसद के नए भवन में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद पहला विधेयक पेश करके दिखाया। पहला विधेयक पेश हुआ वो है महिला आरक्षण विधेयक। इसे सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है। इस विधेयक को जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश कर रहे थे तो सदन में विपक्षी सदस्यों की तरफ से हंगामा भी हुआ। पिछले 27 वर्षों से जब भी यह विधेयक सदन में आया है, संसद में पेश किया गया है, हमेशा ही विरोध और हंगामे की भेंट चढ़ गया। सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को देवगौड़ा सरकार के वक्त यह विधेयक पेश हुआ था, लेकिन तब यह महज एक औपचारिकता भर बनकर रह गया था। यहां तक कि जिस जनता दल के प्रधानमंत्री पहले देवगौड़ा और बाद में आई के गुजराल बने, उसी जनता दल के सांसद शरद यादव ने संसद में इस विधेयक का मजाक ये कहकर बनाया था कि इससे परकटी महिलाओं को फायदा होगा। परकटी महिलाओं का व्यंग उनका अगली और संपन्न जाति की महिलाओं से था।
उसके बाद 1998 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो 12 लोकसभा में महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लक्ष्य से 84वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। लेकिन वाजपेयी की सरकार कई दलों के सहयोग और गठबंधन पर टिकी थी, इसलिए 6 बार यह विधेयक सदन में आता रहा और नाकाम होता रहा। वाजपेयी सरकार के दौरान 1998 में ही बल्कि 2000 और 2001 के शीतकालीन सत्र में भी यह विधेयक आया और 2003 और 2004 में भी यह विधेयक 2 बार लाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय कई बार जो वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा है उसको पारित कराने की कोशिश की गई, वो अधिकार देने की आधी आबादी को कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी के ही सांसद इस विधेयक का विरोध करते हैं। कांग्रेस के अलावा आरजेडी और समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार महिला आरक्षण विधेयक का पुरजोर विरोध किया गया। INDI गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही। इस तरह के सवाल कांग्रेस की नीयत को लेकर उठते रहे। वही हाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी का रहा। 1998 में जब वाजपेयी सरकार के दौरान कानून मंत्री M. थंबीदुरई इस विधेयक को पेश कर रहे थे तो आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने मंत्री के हाथों से विधेयक की कॉपी छीन ली थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव संसद के अंदर और बाहर हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का पुरजोर विरोध करते रहे और बहाना दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक हितों का बनाते रहे। बाद में मनमोहन सरकार में कांग्रेस 2010 में राज्यसभा में इस विधेयक को पास करा सकी तो सिर्फ भाजपा के समर्थन के कारण। यह बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक स्टैंड लिया कि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करेंगे और संसद में उसको कोशिश भी की और न केवल कांग्रेस के समय, मनमोहन सरकार के समय भी उसे समर्थन दिया। लेकिन एक बार फिर यह कांग्रेस का दिखावा साबित हुआ। जाहिर तौर पर यह जब बात उठती है क्योंकि यह कहा जाता है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, राज्यसभा से पारित हुआ था तो कांग्रेस पार्टी इसको लोकसभा से भी पारित करवा सकती थी। इसलिए कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं, कई पहलू सामने उभर के आते हैं। जाहिर तौर पर यह मुद्दा एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद के नए भवन में यह पहल की जा रही है तो उम्मीद की जा रही है यह बिल सर्वसम्मति से पास होगा। जगदम्बिका पाल जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, मैंने यह बात इसलिए बताई क्योंकि देश को वो तथ्य पता होने चाहिए कि महिला बिल को लेकर किसने क्या करा, किसकी क्या भूमिका रही है। जाहिर तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल का भी यह मुद्दा है। आप कैसे उस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने कोशिश किया 2012 में, तो 15वीं लोकसभा थी, मीरा कुमार जी स्पीकर थी और अगर आज तो जैसे होड़ लगी हो, आज अधीर रंजन चौधरी इस सदन में कह रहे थे कि राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में अभी भी है, जबकि इसका नियम है कि अगर मान लिया राज्यसभा से वो सदन पारित हो गया और लोकसभा का टर्म खत्म हो गया या लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल लैप्स हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तो आज तो वो इस बात को देश के सामने कहना चाहते हैं कि जैसे लगता है वीमेन रिजर्वेशन बिल या जो नारी शक्ति वंदना नियम आज लेकर के हम आए हैं तो उसको एक तरह से जैसे कांग्रेस पार्टी ने कभी पास करा दिया हो। आप बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति होती तो केवल ये कि मैं भी 15वीं लोकसभा में था, मेरे आँख के सामने जिस तरह से शरद यादव जी और मुलायम सिंह यादव खड़े हुए और बिल को मंत्री के हाथ से छीन लिया, तो क्या इतने से वो बिल फिर ड्रॉप हो जाना चाहिए था? कांग्रेस को जवाब देना होगा। ये तो होता ही रहता है कि सदन में कभी कागज़ फाड़ देते हैं, कभी बिल छीन लेते हैं, तो इसके बावजूद लेकिन इससे साफ दिखता है कि कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। दिखावा तौर से बिल ले आए लेकिन पास भी न करना हो और वो उस तरीके से हुआ। और जहाँ तक ये है, मुझे लगता है आज के लिए तो ये सोनल मानसिंह जी जो कह रही हैं, आज तो गांव-गांव में जो एक महिला होगी उसको ये महसूस होगा कि अगर नई लोकसभा के भवन में गए तो उस भवन में पहले दिन का पहला बिजनेस सरकार जो लेके आई पहले सत्र में, वो
विमेंस एम्पावरमेंट के लिए। और आज जिस तरह से उनको 33% आरक्षण देने की बात कही, तो इससे आप ये ना जोड़िए कि केवल ये एक आरक्षण हुआ। जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई, केवल वो एक उनको आरक्षण से सशक्त नहीं करना चाहते, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखिए। अगर आप मतलब एक आर्थिक रूप से कैसे उनको वित्तीय समावेशन किया जाए, तो प्रधानमंत्री जन धन खाता जो खुला गांव-गांव, आज 50 करोड़ हो गया, तो कभी उन महिलाओं ने बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा था। तो ये नहीं, ओवरऑल मतलब जिस तरीके से सारी योजनाओं में मोदी जी ने पहले दिन से महिलाओं को किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों सेक्स रेशियो में कितना अंतर था वो आप देखिए। हरियाणा में एक रैली भी हुई थी, तो वो लगातार ये चिंतित थे कि भारत की महिलाओं में मतलब जो अनुपात है, बेटी बचाना चाहिए, बेटी को मतलब जिस तरीके से भ्रूण हत्या होती थी वो आज बढ़ा है। उसके बाद उनको योजनाओं में उनको पार्टिसिपेट कराया गया, फिर उनका एक तरह से जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय रूप से उनको किया जाए। मुद्रा में आप देखिए 10 लाख बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी जमानत के उनको दिया गया। और आज उसकी परिणति हुई कि अब गवर्नेंस में भी, जैसा अभी सिन्हा जी कह रहे थे कि बहुत लोकसभा में, राज्यसभा में अभी कितना 79 है, आज 15% होगा लोकसभा में, राज्यसभा में 14% होगा, तमाम विधानसभाओं में 10% से भी कम है। तो आप ये कितना चिंता का विषय है। तो आज ये 33% ये आरक्षण अब देश में ये अंतर नहीं रह जाएगा। जहाँ कल तक हम यूरोप की बात करते थे, यूएसए की बात करते थे कि वीमेंस को पार्टिसिपेशन है, मतलब हर काम में आज़ादी, कल तो अब ये कितनी बड़ी संख्या में गवर्नेंस में होंगी। मतलब जब खुद गवर्नेंस की हिस्सा बनेंगी, तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि जो अवसर पिछले 8-9 सालों में मिला है, आपने भी देखा चाहे चंद्रयान में भी जब प्रधानमंत्री जी गए, तो किस तरह से अब योगदान नहीं कम किया जा सकता कि महिला वैज्ञानिक जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे खड़ी थी, पूरा देश देख रहा था। तो स्वाभाविक है कि आज उनमें गुण, आज उनमें योग्यता, उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी। और इसके बावजूद भी जैसा आपने कहा, आखिर कोशिश भी नहीं, 15वीं लोकसभा में तो बस एक बार बिल छीन लिया मंत्री के हाथ से, उसके बाद बिल ड्रॉप हो गया और बिल आज तक नहीं पास हुआ। आपने खुद कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार काफ़ी गठबंधन की सरकार थी सहयोगी दल से, तब भी आपने कहा 1998 में पेश हुआ, 1999 में, 2002 में, 2003 में। इससे साफ है कि जो लगातार उनका ये प्रयास था कि उसी समय हो जाए। अगर आप सोचिए कि ये बिल जिस तरह का प्रयास लगातार मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अगर वो पारित हो गया होता तो आज हम दुनिया के किस जगह पे खड़े होते। You're right. It would have been a progressive step, Mr. Sinha, had it been done a few decades ago. Efforts were made, but of course we know that it couldn't fructify. Now, when it comes into force, the number of women parliamentarians, in particularly Lok Sabha, goes up from 82 to 181 whenever it comes into effect. But the question is, by when can it become a reality? Because the delimitation exercise is to happen after the census. So by when can the women of this country expect that our representation in at least the parliament will increase manifold? Now one thing is very clear, that this bill is going to see the light of the day. Absolutely. There is no question. Prime Minister said categorically that this bill would be passed. And he solicited the support of the entire nation in that regard. You know, earlier you raised the question about the naming of the bill. That is significant. You see the policies of the government and social philosophy of Prime Minister Narendra Modi ji is that in 1915 he started Beti Bachao, Beti Padhao. And as a result, you see that the sex ratio has changed 16 points. From 1918 to 1934, and the enrollment ratio in a school of children is female children 77 to 81%. So this is a significant increase. In 2020, Prime Minister from the Red Fort did something which was unusual. That he said that every woman has right to get the sanitary napkin. The taboo which was part of the Indian society for a long, even the educated people refused to go medical shop to buy the sanitary napkin for their wives and or their sister or their mothers. The Prime Minister had demolished that taboo.
Absolutely. Now it has become a movement. NGOs, personal, politician, government, everyone is making. In that regard, the naming is important. This is the completely the process of empowerment. It is a climax of the process of empowerment. And in that regard, I am telling you that once it will be passed by the Rajya Sabha and Lok Sabha, it will do ratification, it will go in the state assemblies. After that, it would be. So there is some technical, now only technical things are here. And politically, it has been almost informally approved. Formally, it would be approved by the Lok Sabha and Rajya Sabha. And I hope that opposition parties would not obstruct by raising if and but. Because if they would try to stop it or create an obstacle in that regard, the nation of 140 crore people would not forgive them. Because you see even in the Pakistan, in Bangladesh, 50 seats are reserved for the women out of 350 representation in Jatiya Sansad. So this is not going to happen in England, from where Westminster we have borrowed. The 35% women are representing in the parliament. Therefore, I consider that this is a historic bill. This is a social revolution. It is heralding a social revolution. And lastly, I will tell that in the process of civilization, we started at a time, in 1821 census, we got that 0 to 1 age children, the number of widow was 597. The child which was less than 1 year, and 1 to 2 year, child which was less than 2 year, the 494. So this went increasing. Now from there to here. So I think this is a day when Swami Vivekananda once predicted that women should have a more liberty, more freedom, more role in the public life, and which is being actualized under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Millions of women, not from India, but all over the world, thanking Prime Minister for this historic step and his vision for women empowerment. Undoubtedly, one of the many progressive steps that India has been taking to empower women. Mr. Sinha spoke about how the Prime Minister broke the taboo by talking about periods on the floor of the Parliament. Another thing that I would like to add, the fact that when at a time when the first world countries are reversing on the reproductive rights of women, India stands as one of the very few countries that increased the period of maternity leaves, and that is again one historic step. It may sound as one law, one bill to the world, but to women across the world who are fighting every day for their rights, this indeed marks a significant milestone. And today, another step towards women-led development, as we've been discussing with our panelists, how significant it is for the 50% of demography in our country to be participating in legislative bodies, to be actually involved in decision-making and framing laws for the country. जी बिल्कुल टीना, वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब बात हम करते हैं उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है और G20 शिखर सम्मेलन में भी सुनने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है वो केवल देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा हो, एक बड़ा मुद्दा उभर के ये पहली बार आया। जगदम्बिका जी, जो टीना जी ने अभी सवाल पूछा उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं देश के लोकतंत्र की, 75 सालों की संसदीय यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर देश की आधी आबादी की बात होगी, क्योंकि राजनीति में आधी आबादी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी, अगर आप उठा के देखें अब तक क्या इतिहास संसदीय यात्रा का, तो करीब 10 से 15% या 14% के बीच ही मामला रहा है। किसी अगर मैं कहूं 15वीं लोकसभा की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए या अभी की बात की जाए, 14, 15, 8, 4, यही इतिहास रहा है। कई दल तो ऐसे हैं जिनकी जो मुखिया हैं वो महिलाएं, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की भागीदारी देखने को नहीं मिलती है। मैंने जो आंकड़े देश के सामने रखे, दर्शकों के सामने रखे, उस राजनीति को सामने रखा, कभी दलितों के नाम पर, कभी ओबीसी के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, जिस तरह से बिल को रोका जाता रहा, वो कितना उचित रहा? क्योंकि जब बात हम नारी सशक्तिकरण की कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं, तो उसमें सभी महिला वर्गों की आती हैं। देखिए, जो सवाल किया आपने बड़ा मौलिक सवाल किया है। कहीं ना कहीं आप इस सवाल का जो जवाब चाहते हैं, आप इस बात को नहीं महसूस करते हैं कि वो बिल क्यों रोका जा रहा था। मुझे लगता है कि एक मानसिकता थी कि विमेंस के प्रति जो एक मानसिकता होनी चाहिए कि शायद ये केवल घर में रहने वाली हैं, इनको घर की गृहस्थी चलाएं, घर का खाना बनाएं, मतलब एक लीडरशिप हाथ होने के बाद, गवर्नेंस के पार्ट होने के बाद सरकार में। और आज क्यों चेंज हुआ?
आप डे वन से देख रहे होंगे मोदी जी, मतलब अब समझ में आ रहा होगा ना कि किस, मतलब चाहे लाल किले की प्राचीर से हो और चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस हो, वो मतलब हमेशा मतलब बेटी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मतलब हर तरह के। और ये जो अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि बड़ा इम्प्रेसिव नाम है, क्यों नाम नहीं दिया गया है? आखिर नाम क्यों दिया? आप देखिए कि अगर ये महिला शक्ति बंधन मतलब ये कानून बनने जा रहा है, तो ये बंधन वर्ड क्यों आ गया, शक्ति क्यों आ गया? मुझे लगता है कि आखिर इस देश में आप कह रहे हैं कुछ वर्षों से क्यों रोका जा रहा है? इसी देश में यत्र देवी पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो जब ये है कि एक तरफ ये है कि देवी या महिला की अगर हम पूजा करते हैं तो वहाँ पे देवताओं का वास होता है, और इसके बावजूद भी ये माइंडसेट नहीं था। ये इतने वर्षों से बात हो रही है, देवी गौड़ा जी की सरकार से शुरू और आज तक 2023 तक, जैसे 27 वर्षों का उल्लेख किया आपने, उसके बावजूद भी उन देवियों को पूजा करने के लिए कह दिया जाता है कि हम महिलाओं का बड़ा महत्व देते हैं, इनको हम देवी के स्वरूप मानते हैं और ये हमारी जो हैं। लेकिन वास्तविक रूप से क्या था कि जो उनको एम्पावर करना था या उनके लिए अधिकार या सशक्तिकरण, आप ये देखिए कि फाइटर पायलट नहीं बन सकती थी, ये भी तो एक बड़ा फैसला। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मतलब इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट नहीं बन सकती थी। ये सारे फैसले कब हुए? आप एक क्षेत्र में बन जाइए कि ये केवल अब एमपी और एमएलए बनेंगे। आप देखिए आर्मी कब से बनी, और आर्मी में इन्फेंट्री में केवल लड़के जाएंगे, पुरुष जाएंगे, मेल जाएंगे, गर्ल चाइल्ड नहीं जाएंगी। तो ये एक फ़र्क था। इसका मतलब है कि अभी तक की सरकार में बैठे हुए लोग ये समझते थे कि शायद महिलाएं बैनेट फाइटिंग नहीं कर सकती हैं या एसएलआर उठा करके मतलब वो एडवांस मतलब फाइट नहीं कर सकती है, अंतर समझा जाता। तो ये मानसिकता का सवाल है कि अभी तक जो एक महिलाओं की शक्ति थी, ताकत थी, उस ताकत को पुरुषों के सामने कमेतर आंका जाता था। तो आप सोचिए कि आप तो उस दिन सोचिए कि जिस दिन ये फैसला हुआ कि भाई आर्मी में, इन्फेंट्री में भी हमारी, नहीं तो आर्मी मेडिकल कोर में चली जाती थी या सप्लाई कोर में चली जाती थी, आज इन्फेंट्री में ऑफिसर्स हो रही हैं, फाइटर पायलट्स हो रही हैं। फाइटर पायलट्स में कितना रिग्रेस करके सिलेक्शन होता है, एक बार पायलट बन जाएंगी फिर उसके, और वो भी लड़कियां किस तरीके से बन रही हैं, उनका आत्मविश्वास आपने देखा होगा जब बीच बीच में इंटरव्यू आता है। तो आप ये सोचिए। और शक्ति की बात, भाई जब प्रधानमंत्री जी लगातार वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट का अर्थ क्या हुआ? शक्ति। तो उन्होंने जब महिला के लिए सशक्तिकरण की बात करते तो महिला के उस सशक्तिकरण से अपनी सारी योजनाओं से शक्ति को लिया। और जो आदिकाल से ऋषियों के ज़माने से मतलब सीता के कि हमारी नारी की वाकई स्थिति तो देवी की ही होती थी, उनको हम वंदना ही तो करते हैं। तो ये कोई एक नाम नहीं दिया गया है, बल्कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा, हमारी सनातन, उससे लेकर के उसको प्रतिबिंबित किया जा रहा, प्रदीक्षित किया जा रहा है। And that's why this transformative step today is being hailed by one and all. My colleague Amrendra spoke to Union Minister Smriti Irani and she hailed 19th of September as a historic day. Let's listen in. एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन, जब न सिर्फ आप लोगों ने नए संकल्प के साथ नए पार्लियामेंट में प्रवेश किया, बल्कि जो काफ़ी समय से अपेक्षित था महिला आरक्षण बिल, उसे भी आप लेके आए। कितना बड़ा मूवमेंट है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और आभार का दिन है हमारी तरफ से, क्योंकि गणेश उत्सव में नए प्रण लिए जाते हैं, कैसे विघ्नों को हरा जाए, कैसे सिद्धि की जाए संकल्पों की। महिलाओं का वर्षों वर्ष से राजनीतिक संघर्ष और संकल्प रहा कि आरक्षण उनको मिले, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान हो। ये दुख की बात है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नारी शक्ति वंदन बिल हमारी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा था, तब सोनिया जी जानबूझकर गायब रहीं, राहुल जी पीठ दिखाकर चले गए। और जब स्पीकर महोदय ने पूछा कि क्या सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं इंट्रोडक्शन का, तब ना कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने समर्थन दिया स्वर से, न हाथ उठाकर। तो कांग्रेस सामान्य महिला की राजनीतिक उपलब्धि
नहीं चाहती, ये इस बात से तब भी हम जान पाए थे जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बना पाए थे। तब भी उन्होंने आदिवासी परिवार की गरीब महिला एक राष्ट्र की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे, उन्होंने समर्थन नहीं किया था। आज भी ये स्वाभाविक था कि साधारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। मैम, जिस पुराने संसद भवन में भी और आज नए संसद भवन में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ नए लास्ट स्पीच में कहा कि हम नए विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और 2047 का भारत नया विकसित भारत जब होगा। विकसित भारत की आप नींव रख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला योगदान महिला का होगा और इस लेजिस्लेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने यही देश भर को संकेत दिया, विश्व भर को, कि हम कहते हैं कि नए भवन में जब प्रवेश होता है तो घर की लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जिसने बेटी को बचाने का, पढ़ाने का संकल्प लिया, ऐसे नरेंद्र भाई ने इस घर में देश की बेटियां प्रवेश कर सके, प्रतिनिधि बनकर जनता की, उसकी आज व्यवस्था की। उसके लिए उनको बहुत आभार। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ सांसद तीरथ सिंह रावत से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं संसद भवन इसे कहा जाता था, लेकिन अब ये संविधान सदन के तौर पे जानी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ सांसद तीरथ सिंह रावत जी। सर, क्या कहना है आपको नई इमारत को लेकर? जब संविधान सदन होगा और जो लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ है नारी शक्ति वंदन के नाम से, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये समय की मांग थी और इसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूर्ण होना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुभारंभ भी, भूमि पूजन भी उनके द्वारा, और उसी कार्यकाल में भी उसके यहाँ सत्र चलना, उद्घाटन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अहम है। और जहाँ ये पुराना हमारा संसद चला करती थी, जो एक सेंट्रल हॉल और जिसमें कि संविधान रचा गया, हमारे संविधान ज्ञाताओं ने बैठ कर के और इस देश को आगे ले जाने के लिए और समग्र विकास के लिए नीतियाँ, पॉलिसियाँ बनाई हैं, तो वहीं आज ये अब अपना संविधान सदन के नाम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कहा गया है और वो पीठ ने उसको ओके किया है, ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा और आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी। साथ ही जो नया संसद भवन, ये भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, और जो कि यहाँ की कलाकृतियाँ, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति और उसमें झलकती है, और उसमें आज शुभारंभ हुआ। हम गदगद हैं और मैंने कहा कि उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया और वहाँ आज प्रारंभ भी हुआ है, और साथ में पहला दिन और गणेश की पूजा जो शुरुआत में है, और उस दिन महिला जो कि हमारा घर चलाती है, महिला के बिना समाज अधूरा है, पूरा नहीं होता है, और वो सुबह से लेकर के रात दिन तक बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, पूरी तरह जूझना और घर गृहस्थी, ये सारा जो देखती है, तो इतना ही नहीं तो आज पढ़ने लिखने में भी अग्रणी है और हर क्षेत्र में आगे है। और आज वह महिला बिल आया है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए, आभार करना चाहिए, और इससे आने वाले समय में एक अच्छा इस देश के लिए और एक अच्छा एक दशा जो होगी हमारी अच्छी बनेगी, और महिला आएंगी तो गरिमा बढ़ेगी, क्योंकि मैंने कहा कि महिलाओं के बिना सब कुछ अधूरा है। तो जहाँ महिला होगी, और महिला को आज मोदी जी ने हर तरह से विकास से भी जोड़ा है।
आज चाहे उज्ज्वला हो, शौचालय हो, मुद्रा बैंक हो, और पूरी तरह से महिलाओं के नाम जो दिया उन्होंने महिला के, तो वो विश्वास आज महिलाओं पे किया है और वो हमारी आराध्य है, और इसके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। और निश्चित है कि इसको एक उत्साह के रूप में भी हमको मनाना चाहिए। बिल्कुल टीना, बात वुमन लेड डेवलपमेंट की है। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इस बात को हर दल कहता है। संसद में भी इस पर कई बार चर्चा होती है, सदन के बाहर भी चर्चा होती है, कई सरकारों ने प्रयास भी, कोशिश भी की। लेकिन राकेश सिन्हा जी, एक दृष्टि ऐसी भी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आप इसका विश्लेषण जरूर करें इस बात का, कि क्या एक वो दृष्टि है जो महिलाओं को थोड़ा कम करके देखती है, उसकी योग्यता को कहीं संशय की दृष्टि से देखती है, कुछ आशंकाएं होती हैं, क्या है? देखिए, ये आशंका उन्हीं के पास है जो भारत के इतिहास से विमुख हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखिए, और उसके बाद हम आ जाएं तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। उसमें राजकुमारी अमृत कौर हो गई, बेगम एजाज रसूल हो गई, सुचिता कृपलानी हो गई, इन सब महिलाओं, मालती चौधरी हो गई, इन सब महिलाओं ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बताया। लेकिन दुर्भाग्य से जब पहला सदन बना 1952 में, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और लोकसभा में सिर्फ 24 महिलाएं पहुंच पाई। लेकिन तब से लेकर 52 से लेकर अब तक देखें तो सुचिता कृपलानी जी से लेकर सुषमा स्वराज जी तक आप एक भूमिका देखिए महिलाओं को। प्रमिला दंडवते को देखिए, गीता मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी की थी। अब सभी पार्टियों से जो महिलाएं आई, सुचिता कृपलानी कांग्रेस की थी, बाद में मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, पहली हिंदुस्तान की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हुई। सुषमा स्वराज जी बीजेपी से थी और गीता मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी से थी। इन सब के डिबेट के को देखें, पार्लियामेंट में जब बहस होती थी, मुद्दों पर बहस होती थी, इनके अंडरस्टैंडिंग को देखिए, तो जब ये बोलती थी तो लगता पूरा पार्लियामेंट सुनता था। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अवसर मिलने पर, और ये जनता का काम है चुनना, जनता के जनादेश पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वे वस्तुतः लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। कुछ लोगों की आदत हो गई कि जनादेश पर ही सवाल खड़ा करना। जनता अपने विवेक से, अपनी भावना से और अपनी हकीकत के आधार पर नेतृत्व को चुनती है। अब मुझे लगता है जब महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, विधानसभा में आएंगी, तो जो अपूर्णता थी पूर्णता में इससे बदलेगी। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि नीति निर्माण में, नीति क्रियान्वयन में और शासन के कार्यों में उनकी भूमिका अहम है, और वो अहम भूमिका हमने संविधान सभा से लेकर अब लोकसभा और राज्यसभा में देखा है। Looking at the kind of reactions, it seems this bill this time particularly is not going to face resistance and it will see the light of the day. But जगदम्बिका पाल जी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो प्रधानमंत्री ने ये भी कही, आज हम पुराने भवन से नए भवन में गए तो उन्होंने कहा सिर्फ भवन ही नहीं बदल रहा है, उम्मीद है भाव भी बदलेंगे। इस बिल पर हो सकता है कि भाव सबके एक जैसे रहें, पर आने वाले समय में विकसित भारत का लक्ष्य है, कई तरह के और ठोस कदम उठाने होंगे। ये भाव एकजुट होकर सारे सांसदों का एकमत रहे, और जिस तरह की चेंज, जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है भारत को, वो हम एक स्वर में ले पाएँ, उसके लिए क्या किया? You have not seen what the stand is changed by Adhir Ranjan Chaudhary ji. Earlier, what stand was taken by Congress party, I think so the whole witness of the country also, during 15th Lok Sabha also. Right. Now I think so, only because of Modi ji stand and what he did in last 9 years as a Prime Minister to women empowerment also, and so many schemes which already we have discussed also. So I think so now it is a question of survival for Congress party. They are realizing that now if we will oppose to this bill, so I think we will stand nowhere. So that's why now they are educating that we have already introduced this bill in this year, and during 15th Lok Sabha it was passed on floor of the House in Rajya Sabha. But what the result? So I think so definitely there will be no resistance, and what Prime Minister Modi ji has appealed to all the member of parliament, I hope so it will be passed unanimously on the floor of the house. इसमें मैं एक बात जोड़ दूं क्या? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भवन नहीं भाव भी बदलना चाहिए, मुझे आज विपक्ष की खासकर राज्यसभा में भूमिका से निराशा हुई। प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लोकसभा में देख लीजिए, ज्वाइंट सेशन में देख लीजिए, राज्यसभा में देखिए, उन्होंने एक कहा ना बड़े कैनवास पे हमें देखना चाहिए और छोटी छोटी बातों से हमें अलग हटना चाहिए। लेकिन मुझे निराशा इस बात की हुई
कि विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से एक बात कही कि वे ही महिलाएं आएंगी और जो महिलाओं की कैपेबिलिटी पर सवाल उठा, वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने आज इस मुद्दे को उठाया जो विषय नहीं था कि फेडरलिज्म कमज़ोर हो रहा है। अब ये तब कह रहे हैं जब कांग्रेस के शासन के दौरान सिर्फ इंदिरा गांधी जी के समय 50 बार 356 लगा था और पूरे कांग्रेस के शासनकाल में 121 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 356 का उपयोग हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये अपवाद स्वरूप भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के कहने का आशय यह रहा है कि सभी दल के लोगों को चुनाव आता है, प्रतिद्वंदिता होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, हम सत्ता में आना चाहते हैं, पराजित करते हैं, जीतते हैं, लेकिन उस बीच में हम राजनीति से ऊपर उठकर, दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर देश के हित में काम करें। जो उन्होंने कहा कि आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, 3 बड़े अर्थव्यवस्थाओं में आएंगे। और एक बात और उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में 1 नंबर का प्रोडक्ट बने। अब उनके इस मस्तिष्क में इस बात का है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बना दें। सबसे बड़ी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या है, कैसे इसे हम अवसर में तब्दील करें। उन्होंने जो एक नारा दिया है उससे मैं अपनी बात करता हूँ, यही समय और सही समय। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया to mark its impact on the world history and world civilization. In fact, to turn this negativity into positivity, the Prime Minister also, and something that that even impressed a lot of his critics, he mentioned about the Samvatsari Puja. He said, let's leave behind the bitterness, walk together, sahi samay hai. And in a way, he wanted to tell the opposition that पुराने में सारी bitterness को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और मिलकर काम करते हैं. As you said, there will be dissent, there will be disagreements, and something which of course will embolden the democracy. But when it comes to nation's development, we have to ensure, because the Viksit Bharat ambition is, we only have 25 years, less than 25 years now. And there are huge tasks cut out. We are still on the stage of empowering our population, the youth and the women, and now they have to become catalysts of that transformation. So the work is a lot to do. There's a lot to do, but that unison factor has to come right now. Only then we can set the right goals. You know, the Prime Minister's remark and his speeches, historic in the context that earlier the Planning Commission used to have a prospective plan for 10 years. Now he made a plan for next 25 years, and his emphasis on kartabya, yani duties. It is not merely that you are abandoning your rights. Along with right, you have to strive for achieving the goal. That goal is a civilizational goal. He said that in 1,000 years of slavery, Indians, the aspirations of Indians have been killed. Now new aspirations are emerging, and he said that this is a historic moment. Then we are fulfilling our aspiration and accomplishment of the, which traditionally we used to say Vishwaguru. In modern terminology, that is the India's the goal of India is to become the not a moral power, economic power, and also the guiding the nation. As you have seen that in G20, I am ending with the remark that League of Nations failed. United Nations is not very successful. Prime Minister democratized the G20, that is people's participation in the international organization, international policy making. That is a significant statement, that is significant intervention by the Prime Minister. I think all the other statesmen would now follow when G20 or any other international bodies. जी बिल्कुल जगदीप पाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तो कहा कि हमें मिलकर काम करें, इस देश के लिए काम करें, आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर काम करें, सदन में जो बिल हों उन पर सहमति के साथ हम आगे बढ़ें, अपने अपने विचार सदन में रखें। देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कल भी और आज भी जो संदेश दिया, उन्होंने अपना एक जो मोटे तौर पर मैंने संदेश उनका सुना, उसमें उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि नए संसद भवन में अगर हम जा रहे हैं तो टकराव की भावना को विदाई देते हुए सहयोग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये सवाल इसलिए भी आपसे, क्योंकि मैंने देखा, चाहे बात राज्यसभा की हो, लोकसभा की हो, सभापति जगदीप धनखड़ जी हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हों, सदन में मुद्दों पर चर्चा, देश के जो मुद्दे हैं, समाज के जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हो और व्यवधान ना हो, कम से कम हो। क्या नई संसद भवन जो हमारी है, इसको लेकर क्या हम एक ये परपाटी बना सकते हैं कि सदन में व्यवधान नहीं होगा?
मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अब एक चीज़ स्पष्ट हो गई जी। क्योंकि जब स्पेशल सेशन बुलाया गया तो बहुत सा कयास कर रहे थे लोग कि क्या होगा। ये विपक्ष कहने लगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन देखिए आज तो अब स्पष्ट हो गया कि देश की उस 50% महिलाओं को राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण के लिए इस बिल को, जो बहुप्रतीक्षित था, इसको लागू करना था। अब ये बताइए कि अगर कल से जिस तरीके से पुराने भवन से नए भवन हम गए, एक कितना सेरेमोनियल हुआ, इस पूरे विश्व को संदेश गया। मतलब लोग, आप क्या प्रिज्यूम करते थे कि अगली बार सत्र चलेगा तो सीधे हम जाके वहाँ बैठ जाएंगे और वहाँ से फिर लोकसभा शुरू हो जाएगा। आप देखिए कि इस विरासत को या इस पार्लियामेंट भवन से अगर सारे सदस्य वहाँ से विदा नए भवन में गए तो किस तरीके से कल हुआ। कल पहले दोनों सदनों में अपने 75 साल की यात्राओं के एक्सपीरियंसेज हुए। आपने देखा होगा पिछले लगातार कितनी बिटरनेस रही हो, कितनी दूरियां रही हो। कल प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी का उल्लेख किया, इंदिरा गांधी का कितनी बार अप्रिशिएट किया। और अगर वो प्रधानमंत्री की पहल है और वो कल कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रहा था, कल कोई इस तरीके का बिल नहीं था कि जिस पे आप अपोज करिए, अमेंडमेंट करिए, तो देश के उसमें कि वो आखिरी दिन का आखिरी सत्र था और देश के सभी, जिस दिन से मतलब संविधान सभा के बाद प्रधानमंत्री बने, उनकी कार्यों का, उनके भाषणों का उल्लेख उन्होंने किया। फिर अधीर रंजन जी ने क्या कहा और जिस तरीके से फिर आज भी सेंट्रल हॉल में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर सारे लोगों की बात अप्रिशिएट किया, तो कम से कम आज पहले दिन जब आप उस सदन में गए तो उस सदन में प्रधानमंत्री ने फिर आज जिस तरीके से स्टेटमेंट का उल्लेख किया, वही जो आप कह रहे हैं कि भाई बिटरनेस या कम से कम पूरा विश्व देख रहा कि एक ऐसा इवेंट हो रहा 2 दिन से कि लोग लग रहा कि अब उस नए सदन से भारत केवल अपने कानून और अपने विधेयक नहीं, लगता है विश्व के इशूज को भी एड्रेस करेगा, दुनिया की मतलब समस्याओं के भी समाधान का वो फोरम बनेगा। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, बिकॉज ओनली व्हेन इंडिया प्रॉस्पर्स द वर्ल्ड विल प्रॉस्पर। हम आज सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास है, बहुत ही रैपिडली इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। राकेश सिन्हा जी, बस लेट्स आई शुड अलाउ टू कंप्लीट कि इसके बाद आखिर उनके सामने बिल डाला जा चुका था ऐप पे। अब बिल के लिए साहब बिल कहाँ है, बिल कहाँ? जब आप नए हाउस में गए हैं, टेक्नोलॉजी है, आपके सामने टैबलेट लगा हुआ है, आप उसको खोल लीजिए, पूरा बिल है, पूरे डायरेक्टिव्स हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस है, पूरे रूल्स का बुक है, सारी चीज़ें उस सदन में अवेलेबल करा दी गई। उसके बाद किस तरह से शोर करने लगे। आज आखिर कोई सदन में शोर करने का या मतलब आज बिल तक आते आते रुक गए, लेकिन लगातार जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, तो मुझे ये कहना 2 बात कि आपने कहा कि क्या आगे भाव और बिटरनेस, लेकिन 2 चीज़ें हमसे मतलब बिटरनेस रख लें, सरकार से रख लें। सवाल तो आज वीमेन आरक्षण का था, तो जो बात राज्यसभा में सिन्हा जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोगों ने कहा, तो उन्होंने तो इससे साफ दिखा दिया कि अभी भी उनके माइंड में महिला कमज़ोर है, महिला नारी अबला है। मुझे तो अभी इसमें जो एक बात जो पूछा आपने बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। देखिए, जब हम ये मान लेते हैं कि सत्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पावर इज आवर माई बर्थ राइट, तो आप जनादेश से कंटेम्प्ट रखते हैं, यू हैव कंटेम्प्ट फॉर द एनी मैंडेट विच गोज अगेंस्ट यू। It applies to political party, it applies to intellectuals, it applies to a particular class of the people. I'm giving just one example because of the very limited time. In 1959, EMS Namboodiripad, elected government of Communist Party in Kerala, was thrown out by using Article 356. You just go through the parliamentary debate. This was the occasion which is the highest stage of bitterness. The presence of communist and the opposition parties, a large number of presence in there, both Rajya Sabha and Lok Sabha. But no obstruction. Everybody used logic and facts. Facts and figures have been used. Not a single occasion when the abusive words or the boycott or adjournment.
This was the tradition, because opposition considered that we have to fight the government on the basis of logic and facts. Here it is just that you are not accepting the mandate. Sometimes you are award bapsi, sometimes. So my appeal to the opposition party, or my considered opinion, is that we in democracy we have to accept the people's mandate, and we have to act as a constructive opposition. And especially when we are the world's largest democracy, we are saying that we are the mother of democracy. We have to live up to that name. It's not just a term. We have to live up to that name, that India is a mature democracy. There are disagreements, there is dissent, but disruption is not replacing these. And there is healthy debate, as Mr. Sinha said. Over the decades, we've had very fruitful discussions in both houses of parliament, and we hope that now in the Parliament House of India, history will be created. There will be more transformative steps, and all political parties will work together for the welfare of the people, 140 crore Indians, and overall the nation's development. So that having been said, we'll have to wrap up the program. Time allows us to take up only that much on this special broadcast. Thank you to both our guests for joining us on this special edition of discussion on two historical moments that we have seen over the past 2 decades. And thank you very much to you viewers also for your time.